ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस पूछे, वर्ड्स भी याद नहीं आ रहे थे, इतनी ज्यादा मैं ब्लैंक आउट हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा दिव्या आंसर। जब आप अकेले कैंडिडेट सिलेक्ट होते हो अमंगस्ट 350 कैंडिडेट्स तो वो फीलिंग कुछ और होती है। Hello everyone, welcome to my channel. So this is my first ever YouTube video. I hope to get all your love and support. My name is Divya and I have recently been selected as a cabin crew with Indigo Airlines, and in this video I'm going to be telling you all about my interview experience. So without any further ado, let's get into the video. वीडियो को एंड तक जरूर देखना टू नो कि एग्जैक्टली फोर्थ राउंड में मेरे साथ क्या हुआ था एंड हाउ यू कैन टैकल अ सिचुएशन लाइक दिस इन योर इंटरव्यू. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप watching the video till the end. Before we start, I would like to tell you all that I gave my first attempt for a cabin crew interview in Pune on 20th March 2024. So that was my first attempt and I got selected in my first attempt, but later I was kept on hold. The reason behind keeping me on hold was a stitch mark that I have beside my eye. उस दिन मैंने मेरा first round clear किया and second round में, which is the medical round. So in that round, मैम ने मुझे पूछा if I have any marks on my body, to which I told her that I have a stitch mark beside my eye. So I have a stitch mark here. I hope it's visible on camera. So मैंने वो स्टिच मार्क अपना जो था वो डिक्लेयर किया था एंड मैम ने मेरा जो मेडिकल फॉर्म था उस पर वो नोट डाउन कर दिया था. सो यस, स्टिच मार्क ज़्यादा विजिबल नहीं था. मैम ने भी मुझसे कहा, सो शी टोल्ड मी दैट यू हैव क्वालिफाइड द सेकंड राउंड. सो आई क्लियर्ड माय थर्ड राउंड एज वेल एंड फोर्थ राउंड के लिए उस दिन देयर वाज नो HR प्रेजेंट टू टेक आवर इंटरव्यू. सो निहारिका मैम ने हमारे कुछ फोटोज क्लिक किए एंड शी वाज सेंडिंग इट टू द HR, टू द इंटरव्यूअर. To which he was replying whether to select or not select. And मेरे medical form पे it was written that I have a stitch mark, so that is the reason she clicked my photo. मेरे stitch mark का उन्होंने photo click किया and वो भी sir को send किया. So after all this process हमें हमारे results declare किए, to which मैम ने मुझसे कहा that congratulations, you have been selected. So I was very happy and within a minute a message pops on a phone that keep this candidate on hold as I want to see her stitch mark in person when we have our next Pune roster. मतलब उनका ये कहना था that जब पुणे में नेक्स्ट इंटरव्यू होगा उन्होंने मुझसे कहा था that आप सिर्फ फाइनल इंटरव्यू देने, फाइनल राउंड देने फिर से आओगे, क्योंकि उनको मेरा स्टिच मार्क जो है वो इन पर्सन देखना था, कितना ज्यादा विजिबल है या नहीं है. So she was just above to give me the declaration form, but later उन्होंने कहा don't sign it because there's a problem that has happened, that sir wants to see your mark in person and that is the reason we are keeping you on hold. To which मैंने मैम को ये भी कहा, मैम ये मार्क ज़्यादा visible नहीं है. So she said, I know, I understand and that is the reason we are keeping you on hold and not directly rejecting you. So वो सुन के मैं घर चली आई. So I had very mixed feelings that day because मेरा selection हुआ भी था and नहीं भी हुआ था. I went back home and then April month में I could not expect a call from them because अप्रैल में कोई इंटरव्यूज थे नहीं पुणे में. एंड फिर 20th अप्रैल के बाद मैंने उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया अगर मई के डेट्स आउट है या नहीं. सो डेट्स आउट थे बट इन मई एज वेल कोई भी इंटरव्यूज नहीं थे पुणे में एंड आई डिडंट वांट टू वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. सो मैम ने मुझसे कहा था दैट शी विल कॉल मी पर्सनली अगर डेट्स आते हैं पुणे के तो, बट अगर डेट ही नहीं आया तो आई कुड नॉट एक्सपेक्ट अ कॉल. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल गो टू मुंबई फॉर माई इंटरव्यू. So when I made a decision to go to Mumbai, I decided that I will go there all fresh. मैं वहाँ जाके HR को ये नहीं बताने वाली that मेरा सिर्फ फाइनल राउंड पेंडिंग है, आप प्लीज वो ले लो, मुझे होल्ड पे डाला गया था. I didn't want to declare all this because मैं right from the first round फिर से start करना चाहती थी and I wanted to give it a try once again, and that is the reason I decided to go to Mumbai for my interview. So in this video, I'm going to be sharing my Mumbai's interview experience with you guys. Also, if you all want a video of my Pune's interview experience, do let me know in the comment section so that I can make a different video for that. Now let's start with my Mumbai's interview experience. First we talk about the date, venue and time. So I gave my interview on 8th May 2024 in Mumbai Andheri East Hotel Residency. And the timings were 9 AM to 12 PM. Of course, I was traveling from Pune, which is a journey of almost 3 to 4 hours. So मैं घर से निकली थी around 2:30 AM and वहाँ पहुँची at 6:30 AM. So if you are somebody who is traveling from far, make sure कि आप venue hall पे 2 से 3 घंटा प्रायर पहुँचो, क्योंकि वॉशरूम में बहुत ज़्यादा रश होता है एंड वॉशरूम्स बहुत छोटे होते हैं, so आपको मेकअप के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा एंड ठीक से जगह भी नहीं मिलेगी.
So yes, if you're traveling from far, make sure you reach the venue hall prior 2 to 3 hours. So मैं वहाँ पहुँची एंड वहाँ जाके मैंने अपना मेकअप किया. आई गॉट माई सेल्फ रेडी. अराउंड 7:30 मैं रेडी हो गई थी. 7 बजे के बाद कैंडिडेट्स आना शुरू हो गए थे. सो मैं जैसे ही रेडी हुई, मैं वेन्यू हॉल गई, वहाँ पे बैठी, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराया, कुछ फ्रेंड्स बनाए एंड वहाँ जाके मुझे पता चला कि वहाँ पे टोकन नंबर जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है. सो कुछ कैंडिडेट्स जिनको पहले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि हमें सीवीज खुद कलेक्ट करने होते हैं 10 के ग्रुप में एंड वी हैव टू फॉर्म अ बैच. तो फिर देयर वाज अ गर्ल हु वाज कलेक्टिंग सीवीज फर्स्ट बैच के लिए एंड शी केम टू अस और उसने हमें बोला कि आर यू इंटरेस्टेड टू गिव योर सीवी फॉर द फर्स्ट बैच. तो मैंने तुरंत अपना सीवी निकाल के उसे दिया बिकॉज मेरा मेन रीज़न इतने जल्दी पहुंचने का यही था कि मुझे फर्स्ट बैच में ही अंदर जाना था, क्योंकि फर्स्ट बैच में आपकी पंक्चुअलिटी दिखती है, हाउ मच यू आर ऑन टाइम. तो HRs ये सब देखते हैं, दे नोटिस इट. सो आई थिंक इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू, मेक श्योर करो कि आपको जो भी बैच मिलती है उस बैच में आप चले जाना, क्योंकि जितना आप वहाँ पे बैठे रहते हो आपका डर, आपका नर्वसनेस और बढ़ता है, ना कि कम होता है. सो यस, आपको जो भी बैच मिले आप उस बैच में अंदर चले जाना, क्योंकि आई हैव सीन कैंडिडेट्स जो नर्वसनेस की वजह से वहाँ पे बैठे रहते हैं और वो अंदर जाने के लिए डरते हैं. तो ऐसे मत करना, जो भी आपको बैच मिलती है उस बैच में अंदर चले जाना. सो यस, मैंने अपना जो सीवी था वो फर्स्ट बैच के लिए दिया था एंड उस दिन हमारी जो HR थी वो राखी मैम थी. तो राखी मैम अराउंड 8:45 AM वेन्यू हॉल पे पहुंची थी एंड उन्होंने आते ही हमें ग्रीट किया और हमें बोला दैट प्लीज़ फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 10 एंड एक बैच बना लो. जैसे ही एक बैच खत्म होती है दूसरी बैच अंदर आना. एंड शी टोल्ड फर्स्ट बैच के लिए कौन कौन रेडी है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड. नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट राउंड विच इज़ द इंट्रोडक्शन राउंड. सो हम वहाँ पे गए एंड एक बड़ा सा टेबल था, राखी मैम उस साइड बैठी थी एंड 10 चेयर्स रखे हुए थे ऐसे. तो हम लोग जाके बैठे एंड गेस व्हाट, मुझे एग्जैक्टली राखी मैम के सामने सीट मिली एंड मैम ने हमसे कहा दैट आई विल बी आस्किंग वन कॉमन क्वेश्चन टू एवरीवन एंड यू ऑल हैव टू आंसर द सेम क्वेश्चन. ऑल्सो टू मेंशन हियर गाइस, मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस नहीं बताने वाली हूँ बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो येस, आई एम मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो ऑफ द क्वेश्चंस दैट वे आस्क्ड टू मी एंड हाउ आई आंसर्ड देम. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन to get notified whenever I post that video. Now coming back to this, मैम के हाथ में 10 CVs थे, so she was calling out names one by one and वैसे हमें आंसर करना था. So मेरा नाम मैम ने 7th नंबर पे कॉल आउट किया. So before answering, I kept two things in mind. First कि मेरा आंसर सबसे अलग होना चाहिए, तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा, and second that I have to give it my best. So I gave my answer. I was loud and confident. तो जैसे ही मैंने आंसर खत्म किया, I could see that Rakhi ma'am was quite impressed with my answer और उन्होंने मुझसे पूछा that what is your birth date. So I told my birth date. She said okay and then उन्होंने बाकी कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस पूछे, जो भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स थे उनको. उसके बाद हमको तुरंत रिजल्ट्स पता चले. मैम ने 3 नेम्स कॉल आउट किए, सबिहा, दिव्या एंड देयर वाज वन मोर गर्ल, आई डोंट रिमेंबर हर नेम. सो हम 3 गर्ल्स को मैम ने सिलेक्ट किया फॉर द फर्स्ट राउंड एंड शी सेड रेस्ट कैन लीव फॉर द डे. So yes, out of 10, 3 girls were selected for the first round, which is the introduction round. Now we talk about the second round, which is the BMI/medical round. So in the medical round, they check your height, weight, color blindness, eyesight, teeth alignment, if you have any scars on your body and tattoos. सबसे पहले जब हम गए, मैम ने हमें एक मेडिकल फॉर्म दिया एंड कहा दैट रिमूव योर स्टॉकिंग्स एंड कम. सो मेडिकल फॉर्म के लिए लेट मी टेल यू गाइस, इफ यू आर समबडी हु इज गोइंग फॉर द इंटरव्यू फॉर योर फर्स्ट टाइम, मेक श्योर कि आपको जो भी मेडिकल फॉर्म मिले, यू जस्ट हैव टू फिल द फ्रंट साइड ऑफ द फॉर्म एंड नॉट द बैक साइड. बैक साइड इज फॉर द HR टू फिल एंड नॉट अस. तो रिमेंबर, यू हैव टू फिल ओनली द फ्रंट साइड ऑफ द फॉर्म. सो इन माई मेडिकल राउंड मुझे 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर था. फर्स्ट वॉज माई स्टिच मार्क, जिसकी वजह से मुझे लास्ट टाइम होल पे डाला था, एंड सेकेंड वॉज माई वेट, क्योंकि लास्ट टाइम आई वॉज 3 kgs ओवर वेट. सो मैम ने सबसे पहले मेरी हाइट चेक की विच वॉज ओके. सेकेंड मेरा वेट चेक किया. सो उन्होंने मुझसे कहा दैट यू आर 4 kgs ओवर वेट, सो यूल हैव टू रिड्यूस 4 kgs. मुझे कोई टाइम पीरियड नहीं बताया कि आपको 1 महीने में कम करना है या 2 महीनों में, बस बोला कि 4 kgs आप ओवर वेट हो, सो यूल हैव टू रिड्यूस दैट मच. तो विच आई सेड ओके. फिर थर्ड चीज़ जो चेक हुई वो थी स्कार्स. तो आई वॉज वेयरिंग अ फुल स्लीव शर्ट. मैम ने मुझसे कहा टू फोल्ड माई स्लीव्स, सो आई डिड. सबसे पहले मेरे हैंड्स चेक किए, उसके बाद मेरे लेग्स चेक किए, फ्रंट बैक दोनों भी. नेक एरिया चेक किया, टीथ अलाइनमेंट चेक किए, फिर कलर ब्लाइंडनेस चेक किया. सो फॉर कलर ब्लाइंडनेस उनके पास एक बिग बुक है जिसमें कलर्स में सारे डिजिट्स बने हुए हैं, सो यू हैव टू गेस द डिजिट. एंड आई साइट के लिए 6 feet डिस्टेंस पे एक पेपर पे अल्फाबेट्स है,
सो आपको वन बाय वन विद योर लेफ्ट एंड राइट आई आपको वो पढ़ना है, यू हैव टू कवर इट दिस वे एंड आपको वैसे वो पढ़ना होगा। सो कुछ वैसी तरीके से हमारा हुआ मेडिकल राउंड कंप्लीट। एंड मेडिकल राउंड का आप रिजल्ट वहीं पे मैम को पूछ सकते हो इफ यू हैव क्वालिफाइड और नॉट। तो मैंने भी अपना रिजल्ट मैम को वहीं पे पूछा। So मैम ने कहा that you are all good and you have qualified this round. Also to mention here, वो लोग 3 to 4 kgs overweight और underweight consider कर रहे थे. So if you are somebody who is 3 to 4 kgs overweight or underweight, you can go for your interview. Moving to the third round, which is the virtual interview. I personally feel that third round is the most difficult of all the rounds that we give because आपको बहुत ज़्यादा questions पूछे जाते हैं and आपके साथ वो लोग बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। सो येस, दे चेक योर कॉन्फिडेंस, दे चेक योर कम्युनिकेशन एंड दे ट्राई टू बिल्ड अ कॉन्वर्जेशन विद यू। यूजुअली सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड तुरंत कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि सबसे पहले वो जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनका फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद ही हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। बट उस दिन वैसे नहीं हुआ। जैसे ही हमारा सेकेंड राउंड हुआ, राखी मैम हमें एक दूसरे रूम में ले गई एंड वहाँ पे हमारा थर्ड राउंड कंडक्ट होना स्टार्ट किया। सो एक बड़ा सा टेबल था एंड उसके साइड में 10 चेयर्स रखे हुए थे एंड एक चेयर के सामने था लैपटॉप, क्योंकि थर्ड राउंड जो है वो हमारा वर्चुअल इंटरव्यू होता है। सो जो HR होता है वो वीडियो कॉल पे आपको क्वेश्चंस करते हैं एंड इट इज़ अ वर्चुअल इंटरव्यू। ऑल्सो टू मेंशन हियर गाइज, मैंने पहले यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे थे जिसमें ये बताया गया था कि थर्ड राउंड में आप सिर्फ अकेले होते हो एक रूम में एंड लैपटॉप के सामने आपको बैठ के आंसर्स करने होते हैं। बट वहाँ पे वैसे नहीं था। मेरे सामने थे 10 और गर्ल्स जिनके सामने मुझे आंसर करने थे। तो इसकी वजह से आपका नर्वसनेस जो है वो बढ़ता है। सो आपको भी ये बात पता रहे एंड आप आपकी प्रेपरेशंस कुछ उस तरीके से कीजिए। एंड येस, मैंने जब वहाँ पे मैं गई, पहले मेरी एक फ्रेंड गई थी, उसके बाद मैं गई एंड मैम ने मुझे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए। तो मुझे थर्ड राउंड में ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे ही मैं आंसर कर रही थी उसको मैम उसको क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी। तो येस, थर्ड राउंड जो था वो पूरा क्रॉस क्वेश्चनिंग पे था एंड थर्ड राउंड में आई थिंक आई गेव माई बेस्ट। मैंने बहुत अच्छा किया। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन वॉट आई वॉज स्पीकिंग। सो मुझे पता था कि थर्ड राउंड मेरा क्लियर होगा बिकॉज मैंने थर्ड राउंड में बहुत अच्छा किया था। सो आई न्यू दैट आई विल गेट सिलेक्टेड। ऑलमोस्ट 1:30 को हमें हमारा थर्ड राउंड का रिजल्ट पता चला। तो मैम आई एक लिस्ट लेके जिसमें उन्होंने अनाउंस किए उन लड़कियों के नाम जो रिजेक्ट हुए थे। तो मैम ने उन्हें बुलाया एंड कहा दैट यू कैन लीव फॉर द डे एंड यू हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो उस दिन अराउंड 350 प्लस कैंडिडेट्स थे इंटरव्यू के लिए, उसमें से ओनली 50 गर्ल्स वे सिलेक्टेड फॉर द थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड जैसे ही हुआ तो कट डाउन हो गए 30। सो ओनली 30 गर्ल्स क्वालिफाइड फॉर द फोर्थ राउंड विच इज द फाइनल राउंड। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ राउंड विच इज़ द फाइनल राउंड। इस राउंड के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस, क्योंकि मैंने पहले ये राउंड दिया नहीं था। सो मेरी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। उस दिन सिर्फ 30 गर्ल्स सिलेक्ट हुई थी फोर्थ राउंड के लिए। तो राखी मैम ने हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया वेर शी मेड अ बैच ऑफ 10 ईच। तो अगेन टू टेल यू ऑल गाइज कि फोर्थ राउंड ऐसे कहते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू होता है, HR आपके साथ 1-on-1 कॉन्वर्जेशन करते हैं, बट ऐसे नहीं हुआ। अगेन हमें 10 ग्रुप ऑफ गर्ल्स के बैचेस में डिवाइड किया एंड हमारा फोर्थ राउंड जो है वो भी ऐसे ही कंडक्ट हुआ। फोर्थ राउंड में भी मैं सबसे पहले वाली बैच में अंदर गई थी एंड फोर्थ राउंड के जो इंटरव्यूअर होते हैं इज समबडी हु इज एट अ हायर पोजीशन इन द कंपनी। तो वो सर थे उस दिन, वो आए एंड हम लोगों ने उनका बहुत वेट किया था। बहुत टाइम बाद वो आए, 1-1.5 घंटा हम लोगों ने उनका वेट किया था। तो जैसे ही वो आए उन्होंने भी सेम हमको बोला दैट आई एम आस्किंग वन कॉमन क्वेश्चन टू एवरीवन एंड यू ऑल हैव टू आंसर द सेम क्वेश्चन। सो यस, सर ने हमसे क्वेश्चंस पूछे एंड सेम वो भी नाम कॉल आउट कर रहे थे सीवी से, वैसे हमें आंसर करना था। तो मेरा जो सीवी था मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो 8th या फिर 9th नंबर पे होगा, बट वैसे नहीं था। मेरा जो सीवी था वो 3rd नंबर पे था और सर ने मेरा नाम कॉल आउट किया दैट दिव्या एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मैंने सर के पास देखा एंड आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट हिम। तो विद इन 2 or 3 seconds उन्होंने मुझसे कहा दिव्या आंसर। तो फिर मुझे क्लिक हुआ दैट येस, हम सबको एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है एंड हम सबको उसी का आंसर करना है। बिकॉज मैं वेट क्यों कर रही थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे। आई जस्ट फॉरगॉट कि हमें एक कॉमन क्वेश्चन सबको पूछा है। सो आई डिड अ बिग मिस्टेक देयर। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी एंड इसकी वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो ऑफकोर्स मुझे समझा कि सर ने जब बोला आंसर तो मैंने स्टार्ट किया अपना आंसर। मैंने सर को पहले ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग बोला, फिर मैंने 4 to 5 लाइन्स आंसर बोले होंगे कुछ एंड फिर मुझे क्लिक हुआ दैट दिव्या यू आर नॉट गोइंग ऑन अ राइट पाथ। अगर तू ऐसे ही बोलती रही
तो तुझे रिजेक्शन ही फेस करना होगा। मेरे दिमाग में वो क्लिक हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम इतनी ब्लैंक आउट हो गई थी कि मुझे वर्ड्स भी याद नहीं आ रहे थे, इतनी ज़्यादा मैं ब्लैंक आउट हो गई थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट उस टाइम मैंने कैसे तैसे हिम्मत जुटाई एंड मैंने सर से कहा दैट सर कैन आई टेक अ मिनट। और वो सर इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझसे तुरंत कहा येस श्योर। सो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा दैट डू यू वांट मी टू गिव यू अ मिनट और डू यू वांट मी टू कम बैक टू यू अगेन। सो मैंने उनको कॉन्फिडेंटली कहा दैट येस सर दैट विल बी ग्रेट। तो येस उन्होंने दूसरी किसी कैंडिडेट को क्वेश्चन पूछा एंड तब तक वो टाइम मैंने अपने आप के लिए लिया। मैं खुद को इतना मोटिवेट किया उस टाइम में, मैंने बोला दिव्या यू हैव टू डू इट बाय हुक और बाय क्रूक बिकॉज दिस इज योर ओनली चांस। बहुत गर्ल्स को इतना भी चांस नहीं मिलता है कि वो 4th राउंड तक पहुंचे। येस आई हैव द एबिलिटी कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मतलब आई हैव टू गिव माई बेस्ट, आई जस्ट कांट वेस्ट दिस। तो आई केप्ट मोटिवेटिंग माई सेल्फ। उतने टाइम में मैंने खुद को बहुत बूस्ट किया। एंड देन सर ने एक कैंडिडेट को क्वेश्चन पूछा, उसके बाद तुरंत सर ने मुझसे कहा दैट दिव्या आर यू ओके नाउ, कैन वी स्टार्ट। एंड देन मैंने अपना आंसर फिर स्टार्ट किया। मैंने सर को पहले अपॉलॉजी मांगी कि पहले जो हुआ उसके लिए, एंड फिर मैंने अपना आंसर स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने इतना अच्छा बोला, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने बहुत अच्छे से बोला। आई स्पोक फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 minutes, बहुत इन डिटेल बोला। तो जैसे मेरा आंसर खत्म हुआ सर सेड ओके। एंड देन उसके बाद जैसे मेरा 4th राउंड कंप्लीट हुआ, हमें तुरंत रिजल्ट्स नहीं बताए गए। जैसे ही मेरा हो गया, आई आस्क्ड अदर कैंडिडेट्स कि उनको मेरा फीडबैक कैसे लगा। तो एवरीवन टोल्ड मी कि आपने बहुत अच्छा बोला, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट मुझे जो टेंशन थी वो मैंने पहले क्या बोला इस पे ज़्यादा थी, बिकॉज ये अलाउड नहीं होता है इंटरव्यूज़ पे, आप फंबल हो जाओ तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था बैक फोर्थ पे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आई वॉज रियली स्कैर्ड। अ स्मॉल मैसेज टू ऑल ऑफ यू ऑल दैट अगर आप भी आपके इंटरव्यूज़ में कुछ ऐसे सिचुएशंस में आए हो जहाँ पे आप फंबल करते हो या फिर आप में इतनी नर्वसनेस की वजह से आप ब्लैंक आउट हो जाते हो जैसे मैं हुई थी, सो येस आप उसे वेस्ट मत जाने देना। जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अपने आप को मोटिवेट करना एंड बिल्कुल भी झिझकना मत। जो भी इंटरव्यूअर है उनको ये पूछने के लिए दैट कैन आई टेक अ मिनट और मुझे अभी अभी ये फील हो रहा है, या फिर वो समझते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, दे अंडरस्टैंड। सो येस अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ होता है आपके इंटरव्यू पे, यू कैन सी व्हाट आई डिड, यू कैन डू द सेम। आप उनको बोलो, बेझिझक बोलो जो आपको फील होता है। बिकॉज उस टाइम अगर मैं सेम उस माइंड स्टेट में बोलती तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। ऑफ कोर्स अगर मैंने उनसे वो टाइम पीरियड ना मांगा होता तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता। सो दैट इज़ द रीज़न। मैं आपको यही कहूँगी कि आपको जो भी फील होता है, आप फंबल हो रहे हो, आपको पता है दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड जस्ट वो नर्वसनेस की वजह से आप ब्लैंक आउट हो रहे हो, तो आप पूछ सकते हो दैट कैन आई टेक अ मिनट। आप अपना टाइम लेके आंसर बोल सकते हो फिर से। सो येस डू दिस वर्क्स। कमिंग बैक टू माई इंटरव्यू, जैसे हमारी फर्स्ट बैच हुई तो मैम आई रिजल्ट्स लेके, तो जिसमें मैम ने 7 गर्ल्स के नाम अनाउंस किए, तो वो 7 गर्ल्स में मेरा नाम नहीं था, तो वो रिजेक्शन की लिस्ट थी। तो मैम ने उनसे कहा दैट यू हैव बीन रिजेक्टेड एंड यू कैन लीव फॉर द डे। तो बचे हम 3 गर्ल्स। तो एक थी जिसको ऑलरेडी एज अ कैबिन क्रू एविएशन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस था, बट वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी, तो मैम ने उसको लेटर ऑन बोला दैट यू आर ऑल्सो बीन रिजेक्टेड। उसके बाद बचे मैं और एक और लड़की थी। सो शी वॉज ऑल्सो हैविंग अ एक्सपीरियंस एज अ ग्राउंड स्टाफ। तो हम 2 बचे थे। उसके बाद सेकेंड बैच हुई, तो सेकेंड बैच में से भी एक लड़की का नाम मैम ने नहीं लिया था एंड थर्ड बैच में से भी एक कैंडिडेट थी। तो हम थे 4 गर्ल्स, बट मैम ने हमारा सिलेक्शन के लिए भी नाम नहीं लिया था। तो हम मैम के पास गए, हमने मैम से पूछा दैट मैम हमारा आपने सिलेक्शन के लिए भी अभी तक नाम नहीं लिया है, एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो मैम ने हमसे कहा दैट आप सर के रूम के बाहर जाके वेट करना, आई कम देयर। तो हम वो रूम के बाहर जाके वेट कर रहे थे। तो हम बहुत डर गए, वी वर लाइक हमारा क्या फिर और एक राउंड कंडक्ट होने वाला है, क्या हमारा 5th राउंड होगा, ये सब हमारे दिमाग में चल रहा था। बट जैसे ही हम गए तो मैम ने कहा गो 1 by 1। तो पहले मैं गई एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सर मुझे वहाँ जाने के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं वहाँ गई एंड सर वॉज स्टैंडिंग और सर के ऊपर एक बड़ी सी लाइट थी। तो सर ने वो लाइट ऑन की और मुझसे कहा कि लाइट के नीचे आके रुको। तो उनको मेरे स्कार्स और मेरी ग्रूमिंग चेक करनी थी। तो मेरे स्कार्स, सर ने फेस के स्कार्स अच्छे से चेक किए। तो मुझे स्लीव्स भी मेरे फोल्ड करने बोले एंड मेरे हैंड्स भी चेक किए अगर हैंड्स पे कुछ स्कार्स है। तो सेम हमारी 4 गर्ल्स का सर ने स्कार्स और ग्रूमिंग चेक किया फिर से। उसके बाद हम जाके बैठे एंड मैम आई फिर लिस्ट लेके ऑलमोस्ट आफ्टर 5 to 10 minutes। एंड वो लिस्ट में मैम ने 3 नेम्स अनाउंस किए। फर्स्ट वॉज संगीता, सेकेंड वॉज चांदनी एंड थर्ड वॉज दिव्या।
तो हमें लगा क्या ये रिजेक्शन की लिस्ट है, पहले तो ऐसा लगा दैट मैम ने हमें बोला कम फॉरवर्ड। तो हम जैसे ही गए तो मैम ने कहा दैट संगीता यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर 1 month PhD, चांदनी यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर 2 month PhD। एंड मैं बस ये प्रे कर रही थी कि बप्पा मुझे कुछ भी करके डायरेक्ट सिलेक्ट होना है, मुझे बस ये सुनना है दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्या, वेलकम ऑन बोर्ड। तो मैं बस ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। एंड फिर मैम ने मेरे पास आई मैम एंड शी सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्या, यू आर द डायरेक्ट सिलेक्ट। ये सुन के आई वॉज सो हैप्पी, आई कांट इवन टेल यू ऑल, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। इमेजिन जब आप अकेले कैंडिडेट सिलेक्ट होते हो अमंगस्ट 350 कैंडिडेट्स, तो वो फीलिंग कुछ और होती है। सो येस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। आई इन्फॉर्म्ड माई पेरेंट्स एंड देन हमारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हुआ जहाँ पे हमें आधार कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो सबमिट करने बोले। एंड बाकी की जो प्रोसेस थी मैम ने कहा वो मेल पे हो जाएगी। सो येस, अगर आपको भी कोई स्कार्स की वजह से पहले रिजेक्शन मिला है या फिर आप होल्ड पे गए हो, यू कैन ऑलवेज गिव इट अनदर चांस। यू नेवर नो कब क्या हो, क्योंकि जो इंटरव्यू के लिए पहले मैं सिलेक्ट होके फिर होल्ड पे गई थी, उसके बाद मुझे डायरेक्ट सिलेक्ट मिला। तो यस, आपके साथ भी ये हो सकता है। और मेरे स्टिच मार्क का मुझे मेरे नेक्स्ट इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, तो आपके साथ भी ये हो सकता है अगर मेरे साथ हुआ है तो। आई वॉज द ओनली कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड अमंगस्ट 350 गर्ल्स दैट डे। एंड जो 2 गर्ल्स थे वो PhD के लिए सिलेक्ट हुए थे। So that was all about my interview experience. Comment down below and let me know how do you like the video. Don't forget to like, share and subscribe the channel. See you until next time.